ठीक है, okay. Hello everyone, welcome back to the class of current affairs for UPSC. I hope the last lecture was helpful for you guys. I received many comments for that, and I will be taking up some of the doubts after the lecture. Today we'll be dealing with this a few topics I have for the day. They will be this defense procurement procedure, states GST, shortfall borrowings, and labor codes. Recently, government has been trying to rationalize the labor codes in country to make the labor market competitive in India, because there are 44 central government labor laws, and around 100 state government laws. 100 state government laws which govern the labor law of India. Why this? Because the labor laws are basically a part of what? The labor laws are part of the concurrent list of the 7th schedule. Okay. We'll be dealing with these 4 topics: the 2 labor laws, the 2 labor codes, and defense procurement procedure, states GST shortfall under, and the borrowings related to them. Okay. The new defense acquisition procedure has been released by Ministry of Defense. I hope it is audible now. The new defense acquisition procedure has been released by the Ministry of Defense, and the defense procurement. What is defense procurement? Okay. Okay, this defense acquisition procedure. What is the defense acquisition procedure basically? It is the procedure as detailed by the Ministry of Defense. How is the government of India or the forces of India, how they are going to procure the armament or defense equipments for them. After the 1991 Kargil War, after the 1999 Kargil War, in 2001, Government of India formulated the first defense acquisition procedure. It was there was a need felt by the Government of India that the defense equipment that should be procured on a timely basis, and there should be a well planned policy for that. Okay, basically there is one defense acquisition council. Okay, defense acquisition council. This oversees the whole procurement process in India for the defense equipment. This council is composed of the Minister of Defense. Okay, Defense Acquisition Council. Defense Acquisition Council is composed of, who is the chairman of Defense Acquisition Council? The Minister of Defense for India. Okay, the Chief of Defense Staff, the Chief of Army Staff, Air and Naval Staff. Okay, these 3 chiefs: Chief of Defense Staff and Minister of Defense for India. There are other members as well who are experts in defense armament, but these are the key members who are the members of Defense Acquisition Council. What does Defense Acquisition Council do? It formulates a policy. Okay, first thing is policy formulation as to what should be the policy and what are the guidelines that need to be followed while
acquisition or procurement of, like capital acquisition or procurement of defense equipment in India. Fine. First thing is they make a policy. Second thing is they decide as to what kind of armament our country needs. Fine. Defense Acquisition Council. The third is, they formulate a 15-year long-term capital acquisition strategy. Okay. What do they do? Defense Acquisition Council, chairman is Minister of Defense for India. Fine. Chief of Defense Staff, he has been, this post has been newly created in India, it was not prior to 2018. Chief of Air Staff, Chief of Army Staff, Air Staff and Naval Staff. These three chiefs and Chief of Defense Staff and Minister of Defense, they form the like Defense Acquisition Council. The Defense Acquisition Council has 4 prime objectives. First of all, it determines the major policy of procurement that the government of India or the defense forces of the country will follow. Fine. The most important thing is they decide a 15-year long-term capital acquisition. What is capital acquisition? The capital acquisition is very, very important because capital acquisition does not include what? Land. Fine. In case of defense procurement, capital acquisition does not include land. Like if an army cantonment has to be made, okay, and for that procurement of land is to be done, that will not be decided by Defense Acquisition Council. But if our country needs a Rafale or like we need a Sukhoi 35, then this Defense Acquisition Council will come into the picture. Otherwise, does land form a part of capital? Of course it does. Okay. So land is usually a form of capital, but in this process of defense acquisition or the defense procurement or the capital acquisition for defense forces, land will not be considered by Defense Acquisition Council. This is an executive body. Fine. But this is an executive body and they will not consider the procurement of land. Fine. They will consider the armament, the defense equipment. Okay. Fine. तो अभी तक ये समझ में आ गया? Okay. The first defense procurement procedure. What is a procedure? It is basically guideline कि अगर हमें defense equipment procure करना है ना for defense अपनी country के लिए, तो what are the guidelines that need to be followed? ठीक है? Recently, like this government has been stressing a lot upon this Make in India campaign and Atmanirbhar Bharat post the COVID-19, है ना? तो उसके बाद the government has been like stressing on this Atmanirbhar Bharat, है ना? Many people are also calling it import substitution. What are they calling it? Import substitution. But is it import substitution? Like I don't believe it is import substitution because like every exclusion is not discrimination. Okay. Similarly, every attaining the method of self-sufficiency is not a method of killing the import. Fine. It is not import substitution because it seeks to align, it seeks to make India independent in terms of manufacturing. Fine. Because manufacturing is the sector that will provide a huge number of jobs. And in the COVID also we saw how manufacturing like micro, small and MSME units were shut down. है ना? MSME units were shut down and in units में तो you cannot work from home also. है ना? So it led to a huge outflow of migrant workers from cities to a huge outflow of migrant workers from cities to the rural areas from where they belong. ठीक है? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या फोकस कर रहा है आफ्टर कोविड-19 जो इकोनॉमिक पैकेज जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया या इकोनॉमिक पॉलिसी जो है दैट सीक्स टू अलाइन इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन. ठीक है? on the lines of Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat means making India self-sufficient in field of like manufacturing and all. ठीक है?
It was recommended by Apurva Chandra Commission. This is very important from the point of view of prelims, fine, because in latest like 2, 3, 4, 5 years we have seen that a lot of commissions are being asked, not only in UPSC, in other state exams as well. Okay, so the main idea behind this is that we have to like make ourselves comfortable with the whole topic, and at the same time we have to deal with the examination point of view, fine. So this is very important. The new defense acquisition procedure has been adopted based on the recommendation of Apurva Chandra Commission, fine. DAP will cover all capital acquisition other than works undertaken by the Ministry of Defense and the service headquarters, both in terms of like both from indigenous sources and like land and medical equipment. If these are the like procurement, then DAP will not be followed. But in case of armament procurement or the defense equipment procurement, like tank procurement, if we have to like procure some tank from some country, or like from within India also you can procure, like government procures from within India, DRDO basically designs, and then manufacturing takes place in ordnance factory boards, and like in private sector also, government has now opened the defense manufacturing to private sector also after the COVID. Okay. So DAP will cover all capital acquisitions other than works and land undertaken by Ministry of Defense. Okay, works and land. Works, what is works? Like the maintenance of cantonment areas, है ना? ऐसे चीजों में जो investment होगा, that will not be taken under DPP. Fine. Or defense acquisition procedure. Sorry, both from indigenous sources, and like the defense acquisition procedure does not only deal in imports. It also deals in like the within the manufacturing that is going within the country, it deals with that also. Okay. Okay. The major feature of this policy has been revised. The offset policy has been revised. Fine. This is a very important term, offset policy. Okay, this offset policy has been revised. What is offset? ठीक है, offset क्या होता है कि like if we are going to procure something, okay, from some other country, okay, like if we are going to import like Sukhoi 30 or Rafale 30, like Rafale we are importing from France, fine, Dassault Aviation, ठीक है. तो in that case Rafale में क्या होगा? एक तो एयरक्राफ्ट होगा, फाइन, उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है, पार्ट्स होंगे, एम्यूनेशन होगा, फाइन. तो ये सारी चीजें जो हैं, एक तो एयरक्राफ्ट होगा बेसिक, ठीक है. अब when we are going to procure this Rafale from France, from Dassault Aviation, ठीक है, तो what will government look for? Government will not only look for this aircraft to have, okay, they will also look for the parts, the ammunition, okay, and all the maintenance as well. Okay, the third part will be maintenance, because all these equipments are very much prone to wear and tear. ठीक है, तो और maintenance, अब maintenance क्यों important है? क्यों? Because बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है ना, जो this technology is very high, superior technology, जो defense technology है, that is a very superior form of technology. तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि like we need all these technology as well. बहुत like many times it happens that the company which is providing the basic aircraft, they will not be providing the maintenance. Okay, they like they will be charging for it like in an extra thing. ठीक है. In that case what the government does, the government makes a contract with the company that you will be providing all of these parts simultaneously in the same contract. ठीक है. तो maintenance, basically what will maintenance, like most of the technology that these technologies are like, they are very like secret, है ना. तो the companies or the countries basically don't want their technologies to be reverse engineered, as the China has done with Russian technology, fine. So what they do is they put the clauses in their contracts that you cannot reassemble or re-engineer, or you cannot
like do the maintenance part on your own. You'll have to call us. ठीक है? So if there's a problem in Rafale, engineers from France will come, and the whole equipment will be taken back to France, or if it is going to be maintained in India, the equipment will be imported from France, है ना? And that is how this maintenance will be done. But that is a very costly procedure. ठीक है? Plus it disincentivizes the domestic manufacturing as well. ठीक है? It is a costly procedure and it also disincentivizes the domestic procedure. क्यों? क्योंकि ऐसे तो domestic manufacturing कभी we like scale up ही नहीं हो पाएगा, है ना? We will never be able to like scale up or establish domestic manufacturing so that India में भी ये indigenous technology develop हो सके. ठीक है? तो इसको address करने के लिए government क्या करता है? Offset policy लाया. ठीक है? Offset policy. ठीक है? Kargil war of 1992 had a huge influence on the way defense procurement and all these defense procurement and the defense technology acquisition is done in India. Fine. Because we had a problem during the 1999 Kargil conflict, and after that the government addressed these problems by making all these policies. The offset policy was brought by Government of India on the recommendation of Vijay Kelkar committee. Fine. Vijay Kelkar committee. Fine. In 2005. So this is 15-year-old offset policy. Fine. Okay. Fine. It was brought in 2005 based on the recommendation of Vijay Kelkar committee. What actually was defense procurement policy? It was to help the domestic manufacturing, है ना? To scale up, to like we should be able to develop our indigenous technology so that we can after a point of time कि हम domestic manufacturing कर सकें इन सारी defense equipments का, because there's a huge cost attached for importing, like Rafale and all these technologies are very very costly, so we have to import them to make our indigenous manufacturing competitive and to promote it, because manufacturing sector is the sector that provides highest amount of jobs. ठीक है? Like it has the manufacturing sector is the sector that has the potential of bringing people out of poverty. Fine, because in manufacturing sector jobs are like jobs have a good growth. They are like in larger numbers. ठीक है? And they are both skill based and non-skill based. Okay. So started in 2005, the offset policy was aimed at increasing defense manufacturing. Okay, indigenous. ठीक है? In defense manufacturing at indigenous level. ठीक है? Okay, the seller of defense equipment needed to invest 30% of the contract value. Like if 100 crore is the total contract value of any defense equipment procurement, 30% of like 30 lakh crore will be utilized in either research, in indigenous research, okay, a transfer of technology or procurement of components from the domestic market. Fine. How is it going to help? How is it going to help? Like this one, procurement of components. Fine. अब जैसे Rafale has some radar, fine, and if that radar is being made in India, so they will have to purchase that radar from India itself. ठीक है? Transfer of technologies, either they procure from India or they transfer their own technologies to some Indian manufacturing unit or Indian company, Indian resident owned company, and they will make it in India. Fine. Or setting up research infrastructure. ठीक है? How are they going to set up research infrastructure? In institutions like DRDO or like in private sector also they can be. But the value of contract should be rupees 2000 crore. The minimum value of contract should be rupees 2000 crores. Okay. But this has been, now this policy has been done away with largely. ठीक है? क्या किया है? Government ने इस policy को dilute कर दिया है. ठीक है? कैसे dilute किया है? कि now only single vendor. Earlier to this, all the defense procurement had to have this offset policy. यानी जितना भी defense डील होता था बाहर की कंट्रीज के साथ, है ना,
तो वहाँ पे ऑफसेट पॉलिसी ज़रूर होती थी। और ऑफसेट पॉलिसी क्या होता था, ये वाली चीज़ है कि 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी इन्वेस्टेड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज और setting up of research infrastructure. But government has in like 2016 में latest defense acquisition procedure आया था. Now that has been revised and it is defense acquisition procedure of 2020. Fine. तो अब ये कैसे रिवाइज हो गया है? पहले 2016 के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में क्या था? ऑफसेट पॉलिसी वाज एप्लीकेबल टू ऑल द डिफेंस इक्विपमेंट डील्स दैट वर टू बी डन, ठीक है. बट नाउ ओनली सिंगल वेंडर, like if there is only one company involved, like Lockheed Martin, okay, it's a US company, it makes fighter jets, Lockheed Martin. If only one company is involved in the deal, fine. If only one company is involved, it is if the deal is based on a single vendor, like if we are going to procure F-16, ठीक है, F-16 is made by Lockheed Martin, ठीक है, तो that the whole deal will be done with Lockheed Martin itself, ठीक है. In that case only offset policy will be applicable. और in other cases like जैसे अगर कोई stealth frigate बन रही है ना, जैसे इंडिया में if we are going to procure like some fleet carrier, ठीक है, in that case अगर उसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, है ना, जैसे लॉकहीड मार्टिन है और डसॉल्ट एविएशन है ना, अगर कई सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, तो वहाँ पे ऑफसेट पॉलिसी हैज़ बीन डाइल्यूटेड, इट हैज़ बीन डन अवे विद, मतलब ऑफसेट पॉलिसी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है. तो बट इट हैज़ बीन लाइक ब्रॉट अंडर वेरी सीवियर क्रिटिसिज्म ऑल्सो कि एटलीस्ट 30%, दिस वॉज एन इंसेंटिव टू मेक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग competitive, but there are the government has now brought other policies as well to like deal with this, ठीक है, we'll be dealing with the in next slides, fine. Okay, the second point of this whole procedure is overall enhancement in indigenous content. What is indigenous content? Indigenous content का मतलब है कि the procurement will be done. What is indigenous content? Indigenous content का मतलब है कि इंडिजिनस कंटेंट की स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि इंडिजिनस कंटेंट मतलब एनी इक्विपमेंट दैट इज बीइंग मेड ओके बाय अ कंपनी, ओके, owned by a resident Indian, ठीक है, यानी रेजिडेंट इंडियन जो है उस कंपनी को ओन करना चाहिए, ठीक है. इज माल्या अ रेजिडेंट इंडियन? नो, ही इज अ एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है. इज अंबानी अ रेजिडेंट इंडियन? यस, ही इज अ रेजिडेंट इंडियन. मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिस कंपनी की ओनरशिप लाइक 51% ऑफ शेयर ओनरशिप जो है वो रेसिडेंट इंडियन के हाथों में हो, उस कंपनी से ही प्रोक्यूर किया जा सकता है. दैट विल बी इंडिजीनियस कंटेंट, ठीक है. अगर इसको हम बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझें, है ना, लाइक इफ यू आर गोइंग टू प्रोक्यूर सम लाइक इट्स अ गन, ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू प्रोक्यूर अ गन, ठीक है, इट हैज मेनी पार्ट्स. लाइक recently India procured some laser scope for like Indian assault rifles from Israel, ठीक है. तो that gun has a specific part, this one it's called laser scope, ठीक है. it helps in viewing at the night, है ना. तो why did we procure this? Because like we felt some problem with Balakot air strike, ठीक है. You must be knowing it. Balakot air strike में like army reported that it had problem with having if we had the better scopes we would have done like much better. तो इसलिए we procured this from Israel right now, ठीक है, a few months back. तो the gun has various parts, ठीक है. इसका ammunition होगा, bullet होगी, scope होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी. तो if some company comes to India and they are like trying to sell this gun to us, so we will be having indigenous content, like the government will prescribe कि your scope should be at least from India, fine. If you are going to give us this gun, the scope should be from India.
and which company will be making this scope in India? From a company, apologies, that has the ownership, the company should have ownership of a resident Indian. मतलब that company should be owned by an Indian who is resident in India. Fine, who is a resident in India, यानी एक कंपनी जिसका 51% ओनरशिप जो है वो इंडियन की हो, वही कंपनी ये स्कोप बना सकती है. आप ये हमें गन दे दीजिए, ठीक है, बट ये जो स्कोप होगा दैट विल बी मेड बाय एनी कंपनी जिसका 51% ओनरशिप एक रेसिडेंट इंडियन के हाथों में होगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस कंटेंट. फाइन. हाँ, तो डीपीपी 2016 एंड डीपीटी 2020 का एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, ठीक है. कैटेगरीज बहुत सारी हैं, लाइक बाई इंडियन आईडीडीएम, ठीक है. अब ये क्या है, बाई है ना, इसको समझ लेते हैं एक बार. बाई इंडियन, बाई एंड मेक इंडियन, बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड बाई ग्लोबल. ये जो हमारा इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है ना, उसमें ये कैटेगरीज मेंशन्ड है, ठीक है. इन सारी कैटेगरीज का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है. बाई इंडियन आईडीडीएम, आईडीडीएम का फुल फॉर्म है इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंड मेड इन एंड मेड, इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मेड. ओके, if a procurement is going to be a buy Indian, ठीक है, ठीक है, if like armed forces are going for a procurement, that is a buy Indian category. Buy Indian मतलब they are going to buy any defense equipment that has been made in, designed in and developed in India, ठीक है. यानी चारों फेजेस जो इसके हैं इक्विपमेंट के बनने के, वो इंडिया में ही हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, बाई इंडियन आईडीडीएम, ठीक है. डीपीपी 2016 क्या कहता है कि मिनिमम इंडिजिनियस कंटेंट कितना होना चाहिए, 40%. दैट हैज बीन नाउ इनहैंस्ड टू 50%. फाइन. तो एज यू कैन सी ऑफसेट पॉलिसी को तो हटा दिया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट ऑफसेट पॉलिसी को तो वी हैव डन अवे विद, है ना. बट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डाइवेस्टेड आवर इंटरेस्ट इन डिफरेंट other policies. Okay, you'll see how. This is IDDM, indigenously developed, designed and made. इसका एक एग्जांपल हो सकता है L&T. लाइक L&T इज अ ग्रोइंग कॉम्पिटिटर इन द इंडियन डिफेंस मार्केट, ठीक है. दे आर गोइंग टू मेक सम गन्स एंड ऑल दिस, ठीक है. तो IDDM, if like government of India or like Indian military goes for an acquisition of a gun made by L&T, तो and then that gun has been developed, designed and made in India only, तो 50% जो indigenous content, तो L&T cannot have more than how much, like 50% of the L&T cannot include more than 50% of the components which have been imported. Fine. कम से कम 50% component जो है इस गन का जो IDDM फेज में है ना, IDDM कैटेगरी में है, उसका कम से कम 50% component वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, वो इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, बाय इंडियन. ओके, इन बाय इंडियन का मतलब है कि एनी कंपनी लाइक इफ रिलायंस इज इंपोर्टिंग समथिंग, है ना, एंड दे आर सेलिंग इट, दैट इज बाय इंडियन, ठीक है. अब उसमें क्या कर दिया, इंडिजिनियस डिजाइन. अब उसमें भी हम पहले था मिनिमम 40% कंटेंट होना चाहिए. लाइक रिलायंस, इफ रिलायंस इज इंपोर्टिंग एनी आर्मामेंट इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड दे आर सेलिंग इट इन इंडिया, उसमें भी डीपीपी 2016 का प्रोसीजर था कि इंडिजिनस कंटेंट मिनिमम 40% होना चाहिए. तो यू कैन सी कि सम हाउ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग प्रमोटेड, है ना, कि इवन इफ यू आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड सेलिंग इट इन इंडिया, स्टिल यू हैव टू एटलीस्ट हैव मिनिमम 40% ऑफ द component should be indigenous. That was in 2016. But now in 2020, if indigenous design, है ना, minimum 50%, otherwise minimum 60%. Now to disincentivize, what government is trying is to disincentivize the buy Indian, because buy Indian में क्या है, most of the products are being imported and sold in India, ठीक है. तो government does not have a very good incentive in promoting it. So what are they imposing? They are imposing higher indigenous contents, ठीक है, कि मतलब अगर किसी मतलब you can see कि it becomes almost Indian if the product has 50% or 60% indigenous components, तो it almost becomes Indian, ठीक है. Buy and make क्या होता है? Buy and make का मतलब है कि we will be buying some armament or equipment from foreign country and we will be gradually
in a phased manner will be making that in India as well. ठीक है? That involves a transfer of technology. What does this involve? It involves a transfer of technology. Like if like India bought Sukhoi, है ना, from Russia, and then they started gradually repairing it, maintaining it, and at the end, if they started manufacturing it also, that will be buy and make in India. तो यहाँ पे same है, make 50%, ठीक है? This is a new category. This is a new category that has been included in this DPP 2020. It was not present in the earlier version of procurement procedure. Fine. Minimum 50% of buy plus make, the same. Buy global manufacture in India. This is a very novel method. What the government is trying, they are trying to attract foreign countries, global countries to India to set up their manufacturing plants over here. और वहाँ पे क्या है कि minimum 50% of buy plus make, again the buy plus make, ठीक है? फिर buy global, if we are going for a global procurement like Dassault Aviation and we purchased like minimum 30% of Indian vendors. Like अब अगर हम जाएंगे रफाल खरीदने, है ना, तो रफाल में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए जिसका 30%, मतलब पूरे कंपोनेंट्स का 30% जो हो वो इंडियन वेंडर्स के थ्रू सप्लाइड हो, ठीक है? तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो इंडिया में ही बना हो, ठीक है, बट वो सप्लाइड किसके द्वारा हो? इंडियन वेंडर्स के द्वारा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. If you have any problems, you can like post your problems in the comment section. I'll be taking it after the lecture. This is important. This is important from the prelims point of view because question ऐसे आ जाता है कि in the recent revised guidelines of DAP, what is the like एक question probable ये हो सकता है कि what is the new category that has been included in the DPP 2020. Fine. Similarly ऐसे question हो सकता है कि if you observe कि 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 40 से 50, 40 से 50, 40 से 60, ठीक है, 50, ठीक है, ये तो था ही नहीं पहले, ये दोनों था ही नहीं, तो 10% एंड 20% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 20% एंड 10% का. तो डोमेस्टिक कंटेंट को इन्हांस करना चाहती है गवर्नमेंट सो दैट हम क्या कर सकें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकें. फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट. यू शुड लाइक okay, this is a very important thing from strategic point of view, strategic partnership model. Okay, इसमें क्या है कि original equipment manufacturers, what are original equipment manufacturers? The company that is making the original equipment, like Dassault Aviation in case of Rafale, ठीक है? तो वही make in India and defense and play the, मतलब ये है कि कोई जैसे अब Dassault Aviation के साथ हमने Rafale खरीदा और Dassault के साथ कोई इंडियन कंपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाएगी so that gradual transfer of technology takes place and gradually Indian domestic manufacturing also enhances its scale, ठीक है? And at the same time जो इंडिया का जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है that will be upgraded. Fine. तो यहाँ पे एक important चीज़ है रिजर्वेशन ऑफ इंडियन वेंडर्स, ठीक है? इंडियन वेंडर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें रिजर्व्ड हैं, ठीक है? और ये हैं बाय इंडियन IDDM, make 1, make 2, production agency in design, ordnance factory board. These categories you can just like learn them. They have been reserved for Indian vendors. फिर again not more than FDI, even if it is an Indian company, है ना, तो उस कंपनी में FDI cannot be 49%, more than 49%, to maintain the ownership of the nature of the ownership as Indian, ठीक है? So what is strategic partnership model? This has been included in the DAP 2020. This is basically the original equipment manufacturing going in partnership with the domestic manufacturer and they are producing this whole equipment. Fine, this is strategic partnership model. What is significance? It will like boost
Domestic manufacturing, as we have talked about, this slide is like we have already talked about most of the things. DAP provides for impetus for indigenization, ठीक है? It provides impetus for indigenization and facilitates technology infusion, ठीक है? Boosts overall economy, क्योंकि 1.7 lakh crore in defense manufacturing by 2025, with the sector identified as having potential to boost the overall economy, ठीक है? But what are the concerns? Dilution of offsets. This policy has been criticized on the front of dilution of offsets, that like 30% in minimum investment in Indian market or Indian domestic manufacturing has been done away with. ठीक है? Okay. Okay, center allows borrowings by state governments. This is a very important part of like polity, the federal structure, है ना? इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है? It's obviously quasi federal. It's not a completely federal one, है ना? Center allows government, like the state cannot borrow without center's consent. In which case? In case if the state is having an outstanding loan of central government. If the state is like, if UP is having an outstanding loan of the union, fine, तो UP cannot borrow, ठीक है? ये ensure करता है कि जो states हैं उनका domestic economy जो है वो spiral down ना हो जाए in the terms of like loans. तो union is like India का जो structure है वो quasi federal है, in the sense कि it is highly inclined towards union, है ना? And the states have been not like financial independence के terms में if we talk, तो states have been not made as independent as the other federal governments are, ठीक है? तो if a state is having an outstanding loan of the union government, है ना, तो they cannot borrow without the consent of the state, ठीक है? दूसरा point क्या है कि if the union government has given guarantees on the loan, if the UP has borrowed from, not from this union, from any other state or any other like open market borrowing, and union government has provided the guarantees for the loan, if the union government is guarantor of the loan, then also UP cannot borrow without the consent of the Union of India, ठीक है? Let's see why in news. It is because Department of Expenditure, Ministry of Finance, this department is like, एक बार you should always look at कि there are 5 departments in Ministry of Finance, they are all very important, है ना? Department of Revenue, Department of Expenditure, है ना? तो you should always remember these. Exams में कभी ऐसे भी आ जाता है कि which department, क्योंकि it has been prescribed in the syllabus कि which departments and ministries. So it is always important that we remember which department is under which ministry. It's not a very big thing. If you are like going through the news and if you are going through the news daily, तो you will be aware कि basic awareness होगी कि कौन सा department कौन सी ministry के अंदर है, like economic survey कौन सा department publish करता है ना? All these are important things. So you should always, from the prelims point of view, these tidbits are very important, ठीक है? तो Department of Expenditure, Ministry of Finance has allowed 20 states to borrow from open market, ठीक है? Open market borrowing means they can use their government securities, treasury bonds, है ना? What are government securities and treasury bond? What is a bond basically? A bond is a debt instrument. What is a bond? It is a debt instrument. Like if I have a bond of like rupees, if I want to establish a company, ठीक है? So what will I do? I have 2 options, है ना? Either I will go to bank to take a loan, या कोई मेरी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर दे, है ना? या वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट कर दे, है ना? या तो मैं क्या करूं, बॉन्ड इशू करूं अपनी कंपनी के, है ना? और बॉन्ड को मैं मार्केट में फ्लोट कर दूं. एंड इफ पीपल हैव ट्रस्ट इन माय कंपनी, दे विल बाय दीज बॉन्ड्स, ठीक है? और वो जब वो बॉन्ड खरीदेंगे तो मैं उनको क्या करूंगा, आई विल बी पेइंग देम इंटरेस्ट, ठीक है? कि प्लीज परचेज माय बॉन्ड एंड आई विल बी गिविंग यू लाइक 5%, 3%, 2% इंटरेस्ट सॉरी एनुअली, एंड आपका पैसा मेरी कंपनी में है एंड यू आर माई डेटर, है ना? आप मुझे डेट दो. तो बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट, अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी होते हैं. तो जिसको भी पैसे चाहिए वो क्या करेगा, दे कैन फ्लोट दिस बॉन्ड्स इनटू द मार्केट, ओपन मार्केट, और पब्लिक कैन बाय. इवन देयर आर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, बैंक्स जैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं
they can invest, है ना, and they will be what, that is how money is raised, ठीक है. तो government, because of this COVID situation, there has been a shortfall in the payment of like GST payment to the state governments, है ना. तो उसके लिए उसको उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अलाउड 20 states to borrow from the open market using the government bonds, ठीक है. Under this state could borrow, okay. This is the upper limit, okay. The states, all the states together, it is not one state, ठीक है. It is all the states together can borrow 1.1 lakh crore, ठीक है, from the market with principal and interest to be, okay. The important thing is the principal and interest payment to be paid out of GST cess collections whose levy has been extended beyond 2022, ठीक है. What is this statement? What does this statement imply, है ना, कि सारे, पहला तो ये है कि पहला जो टर्म है इस स्टेटमेंट का कि they can borrow 1.1 lakh crore rupees from the market, but it will not be treated as a loan. The important thing is it will not be treated as a loan. Why? Because the principal and interest payment will be done by the states. जो बोरो करते हैं उनको अब इस लोन पे इंटरेस्ट भी नहीं पे करना होगा और इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पे करना होगा. फाइन. कैसे करेंगे? स्टेट्स मान लो बॉन्ड इशू कर देते हैं, पब्लिक खरीद लेती है, लाइक 10 ईयर का बॉन्ड है, 5 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है. अब इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड होगी एंड कूपन होगा, कूपन रेट होगा. कूपन रेट इन द सेंस कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट द बॉन्ड इज पेइंग, ठीक है, टू द होल्डर. अब जैसे यूपी है, यूपी अगर अपने बॉन्ड फ्लोट करता है, ठीक है, मान लो 100 करोड़ रुपीस के बॉन्ड फ्लोट करता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो उस 100 करोड़ रुपीस पे मान लो 7% इंटरेस्ट यूपी गवर्नमेंट इज पेइंग टू द बॉन्ड होल्डर. दैट विल बी अराउंड whatever it is, like 7 crores ऑब्वियसली, है ना. तो और इस 7 करोड़ तो गवर्नमेंट को पे करना ही है, पे बैक करना ही है. एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज आल्सो टू पे बैक इज द प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, क्योंकि एक टाइम जब मैच्योर हो जाएंगे बॉन्ड तो गवर्नमेंट विल हैज टू परचेज दोस बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, एंड पे द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बैक टू द पब्लिक, या जो भी बॉन्ड होल्डर है उसको देना होगा, ठीक है. लेकिन इस केस में क्या है, गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है टू डील विद द शॉर्टेज ऑफ लाइक जीएसटी पेमेंट, क्योंकि जीएसटी पेमेंट नहीं कर पाई है यूनियन गवर्नमेंट, किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन रेवेन्यू शॉर्टफॉल एंड ड्यू टू विच द यूनियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू मेक द जीएसटी पेमेंट्स, है ना. तो ऑब्वियसली स्टेट्स आर क्राइंग दैट दिस देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हैज बीन ट्रैम्पल्ड अपॉन एंड ऑल दिस. इन दैट सिचुएशन, okay, so what the central government has come with a scheme, they will allow the states to issue bonds into the market, open market, and they can raise some money to deal with their shortfalls. और जो प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट होगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को पे नहीं करना होगा, है ना. अंडरस्टूड, ठीक है. वो कहाँ से पे होगा? जीएसटी सेस. अब ये किस पे एट द एंड आएगा? पब्लिक पे, है ना. कैसे? जीएसटी सेस किस पे लगेगा? पब्लिक पे लगेगा. फाइन. तो जीएसटी सेस का कलेक्शन जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बियॉन्ड, इट वाज अर्लियर अप टू 2022 के बाद द गवर्नमेंट वाज टू डू अवे विद द जीएसटी सेस, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2022. एंड जो ये कलेक्शन होगा, जीएसटी सेस कलेक्शन होगा, उसके थ्रू अपन लाइक विल बी फाइनेंसिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट. फाइन. तो बेसिकली दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लोन. इट्स अ गुड थिंग, ठीक है. ओके. The constitutional provisions are Article 293. It's a very important article. In this time, like it's very important because the federal structure of India is already very favored in the favor of union, है ना. और COVID situation has also like ameliorated the situation, है ना. It has aggravated it. It has made the situation more like tough for states to deal with the financial crunch they are, because states don't have a lot of financial independence, ठीक है. Okay, there is one act I would like to bring about is there is like FRBM Act, है ना. FRBM Act, this is important. Fiscal Review and FRBM Act, Fiscal Review and Budgetary Management. Fiscal Review and Budgetary Management Act. What does this act prescribe? This act prescribes the limitations of फिस्कल डेफिसिट्स फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट एंड बोथ स्टेट एंड यूनियन, ठीक है. स्टेट्स के ऊपर कितना है? 3% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. किसी स्टेट का, फॉर एग्जांपल यूपी का अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है, यूपी का जीडीपी
उसको GSDP कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर यूपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 100 करोड़ रुपीस है तो 3% वो उसका फिस्कल डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। FRBM, ठीक है, FRBM रिव्यू कमेटी कौन सी थी, सॉरी, तो important thing is कि 3% the states are allowed to have a fiscal deficit of about not more than 3%, ठीक है। But in May 2020, ठीक है, May 2020, ठीक है, Government of India allowed 5% of relaxed this limit of FRBM के अंदर जो prescribed limit है 3% की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, उसको रिलैक्स कर दिया है कहां तक, 5%। नाउ द स्टेट कैन बोरो 5% ऑफ देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इन ओपन मार्केट। मतलब इन द सेंस कि जो पहले फिस्कल डेफिसिट का लिमिट था वो 3% था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया कहां तक, 5%, सो दैट स्टेट कैन लाइक स्टेट डोंट हैव टू confine themselves in like पहले liquidity crunch चल रहा है due to COVID situation and उस वक्त the states were dealing with obviously liquidity crunch तो fiscal deficit target was obviously going to be breached, है ना। तो in that case the government has relaxed this provision up to 5%, ठीक है, okay। Okay, what are the constitutional provisions, ठीक है। You will see how the union government has overriding power over states' finances and like states' borrowing powers, ठीक है। Article 293 states the borrowing power of states subject to the provisions of this article. What is borrowing power? Borrowing power is an executive power. What does this mean? What does this mean, this word, the executive power? इसका मतलब ये है कि the government can, the executive can, like ministry can, okay, the finance ministry of the state, states में departments होते हैं, ministries नहीं होती, the department of finance of the state can without the legislative sanction of the legislature, है ना, like यूपी की विधानसभा या दिल्ली की विधानसभा के बिना ही, के सैंक्शन के बिना ही अगर कुछ काम होता है तो वो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इसमें प्रिस्क्राइब्ड होता कि subject to the provisions of this article the legislative power of the state, तो उस वक्त क्या करना पड़ता, गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना पड़ता, what, whenever the government is going to borrow they will have to take the permission of the legislature, है ना, और then only they can borrow, but पहले ही prescribed है क्या, subject to the provisions of the executive power, मतलब the ministry or the department of finance can directly borrow within the territory of India. This is very important. States cannot borrow outside the territory of India. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोरोइंग पावर किसके पास है, यूनियन के पास है, मतलब ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन बोरो आउटसाइड द कंट्री ऑफ इंडिया, लाइक आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ओके, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है, ओके। व्हाट डज दिस मीन, मतलब सिक्योरिटी का मतलब है कि a state can publish bonds, securities against the treasury of the state. जो state का total treasury है उसके against state क्या कर सकता है कि bond publish कर सकता है to raise a loan, ठीक है, against the security of the state, of the consolidated fund of the state, if any, within such limits. Such limits, limits prescribe करना क्या है, एक legislative function है, ठीक है, fixed by the legislature of the स्टेट बाय लॉ, ठीक है। हालांकि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं प्रिस्क्राइब किया है, इट्स लाइक कन्फ्लिक्टिंग थिंग कि अगर मुझे बोरोइंग करनी है ना, तो व्हाई वुड आई प्रिस्क्राइब लिमिटेशन अपॉन माई सेल्फ, है ना, बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव इट इन लॉ, है ना। तो क्या है, एज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब वेन एवर a state government wants, a state legislature wants, they can prescribe limits on borrowing of that state, but no state has, like until now no state has prescribed such limits, ठीक है। So subject to the provisions of, मतलब the executive power of the state in taking loans, है ना, extends within the territory of India, 293 clause A, and on the security of the consolidated fund of the state, and the third provision is within the limits prescribed by the state legislature, ठीक है, if any as may be so fixed.
The second point is the Article 293 is very important, है ना? You should make notes of it because many things I'm telling you'll be having trouble with if you are not like good with this subject. ठीक है? The government of India may subject to such conditions as may be laid down by or under in law में okay. Government of India, ठीक है? Government of India. यहाँ पे अगेन लोन लेना कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है. लोन देना कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है. क्यों? अगर यहाँ पे लिखा होता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, दैट वुड हैव बीन अ लेजिस्लेटिव पावर. तो दिस टर्मिनोलॉजी इन पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द लेक्सिकन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, मेंस में भी, इवन प्रीलिम्स में तो लाइक आई थिंक दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स ओनली कि लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना. तो these concepts should be like very much clear. ठीक है? तो borrowing by the states and lending by the union both are what? Executive powers. ठीक है? The government of India may subject to such conditions as may be laid down by or the, देखो यहाँ पे parliament. ठीक है? Again, तो the constitution makers are very much clear with what they want. ठीक है? उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि लिमिट्स कौन इम्पोज करेगा? लेजिस्लेचर. और लोन कौन एक्सटेंड करेगा? गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव. Make loans to any state or so long. Okay, Article 292 prescribes. Article 292 does not prescribe any limit. Okay, Article 292 only says that the legislature or the parliament can prescribe limits on extending the on the powers of, like on the amount of the power, like कितना extend कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट लोन, वो है. Article 292 बस इतना कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इम्पोज कर सकता है लिमिट किस चीज़ पे? लोन एक्सटेंड करने पे. कि मतलब वो पार्लियामेंट बता सकता है कि गवर्नमेंट कितना लोन एक्सटेंड कर सकती है. दैट इज इट, आर्टिकल 292. ठीक है? तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है प्रिस्क्राइबिंग लिमिट अंडर आर्टिकल 292, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लिमिट्स के विद इन लोन्स एक्सटेंड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को. इज दैट क्लियर? I suppose it is clear now. एक बार फिर से बोल देता हूँ. आर्टिकल 292 के परसुअल में या पर आर्टिकल 292 के अंडर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, लिमिट्स प्रिस्क्राइब करता है. ठीक है? किस चीज़ पे लिमिट्स प्रिस्क्राइब करता है? लेंडिंग पे. किसकी लेंडिंग पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेंडिंग पे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ही लेंड कर सकती है. तो उन लिमिट्स को ब्रीच बिना किए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को लोन ऑफर कर सकता है. ठीक है? सिंपल. मतलब एक मिनिमम कि लॉ ने कह दिया कि 500 करोड़ से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते लोन. ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 500 करोड़. दैट इज इट. आर्टिकल 293 बी. आर्टिकल 293 सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ दिस यूनियन. ओके, मैंने ये वाला स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट कैन नॉट बोरो. ओके, दैट कैन नॉट बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया if it has an outstanding loan of Union of India, or if it has a loan that has been guaranteed by the Union of India and the loan has not yet been paid back by the state government. ठीक है? Article 293 4 states that the center may grant consent under the clause 3 subjected to certain conditions. ठीक है? Okay, oh sorry. ठीक है? तो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 तक पढ़ चुके हैं. आर्टिकल 293 क्लॉज 4 ये कहता है कि द स्टेट्स, ओके, पहला आर्टिकल 293 क्लॉज 3 है द कंसेंट ऑफ द यूनियन इज रिक्वायर्ड इफ द स्टेट इज हैविंग एन आउटस्टैंडिंग लोन. आर्टिकल 293 4 कहता है द सेंटर में ग्रांट कंसेंट अंडर क्लॉज 3 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. दैट मीन्स द यूनियन कैन इम्पोज, है ना, restrictions या impose qualifications on states, है ना. It's a very important clause. I will be explaining this in a bit detail. Union can impose qualifications on state government, है ना, state government while they are extending the loan या they are extending their consent. जब यूनियन गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि यस ठीक है तुम बोरो कर सकते हो मार्केट में, तो उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकता है. ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
क्योंकि स्टेट्स के ऊपर अगेन एक तो कंसेंट के लिए स्टेट्स को भागना पड़ेगा यूनियन के पास। अगेन अगर यूनियन चाहे तो वो कह सकता है कि जब तक तुम ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करोगे तब तक यू कैनॉट बोरो, ठीक है। तो द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ स्टेट्स इज वेरी वेरी मच कंट्रोल्ड बाय सेंटर, फाइन। The center has been exercising, okay, this is important, the center has been exercising this power on the basis of recommendations of finance commission. This is important क्योंकि क्लॉज 3 और क्लॉज 4 कंसेंट के बारे में बात करते हैं। किसके कंसेंट? यूनियन गवर्नमेंट के कंसेंट के बारे में। लेकिन इट्स अ वेरी वेग थिंग क्योंकि देयर हैज बीन नो लॉ मेड टिल नाउ that defines ki what are the principles or what are the guidelines that should be followed by the union government while extending loan or extending consent to the state to allow them to borrow into the market, ठीक है। तो सेंटर क्या करता है? बेसिकली फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे काम करता है, ठीक है, फाइन, ओके। इसमें 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, है ना, कि अभी जो इंडिया का कोविड-19 सिचुएशन के बाद जो कंडीशन है उसके बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट अ बिट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस बोरिंग क्लॉज, ठीक है। लाइक मई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड व्हाट डिड इट अलाउ? 3% से 5% का इंक्रीज, ठीक है, 3% से 5% का इंक्रीज अलाउ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ओके यू कैन नाउ बोरो अप टू 5% फ्रॉम द अर्लियर 3%, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट लाइक दिस इज नॉट फ्री, इट हैज सर्टेन राइडर्स आल्सो, लाइक फोर कंडीशंस इंपोज की हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है कि वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, ठीक है। पहला कंडीशन है कि द स्टेट शुड इंप्लीमेंट, ठीक है, बाय 2021 व्हाट? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, पहला कंडीशन है। दूसरा म्युनिसिपल रिफॉर्म्स, है ना। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 3% से 5% पे तो बोरो कर तो सकते हो, लेकिन आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन सी कंडीशंस? आई एम मेंशनिंग देम हियर, फाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द म्युनिसिपल रिफॉर्म्स। एंड वी नो अनदर कौन सा सेक्टर जो इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, क्योंकि पावर डिस्कॉम्स आर फेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक बैलेंस शीट इश्यूज, है ना, उनके बैलेंस शीट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। इसके लिए उज्ज्वल डिस्कॉम योजना भी आई थी, है ना, ऑल्दो इट हैज़ नॉट हेल्प्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्टेट्स रिलक्टेंस, है ना, और लाइक दे आर नॉट वेरी ईगर टू लाइक सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स, है ना। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, वन नेशन वन रेशन कार्ड, म्युनिसिपल रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो अगर आप इन कंडीशन को फॉलो करोगे, है ना, तो आपको आपकी जो बोरोइंग लिमिट है दैट विल बी इंक्रीज टू 5%, अंडरस्टूड, ठीक है। तो स्टेट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग दिस वेरी फेरोशियसली कि मतलब स्टेट्स आर आस्किंग कि मतलब हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं, है ना, कि अगर क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं दे आर लाइक तेलंगाना इज गुड इन म्युनिसिपल रिफॉर्म्स, है ना, दे डोंट नीड इट, है ना। और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, है ना, एक्चुअली वहाँ के लोग बाहर जाते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, इट इज लाइक वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसको स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग इट, है ना, बट ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट इज सुप्रीम, तो दिस आर द क्लॉजेस, है ना। 3% और मई के बाद जून में, है ना, जून में जो बोरोइंग का जून 2020, ओके, जून 2020 में बॉन्ड यील्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे थी इट वाज ऑलरेडी 6.28%, इट वाज 23 basis points BPS, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टर्म्स, है ना, हायर देन द प्रीवियस क्वार्टर, हायर देन द प्रीवियस क्वार्टर। व्हाट डज दिस मीन? ओके, आई वुड लाइक यू गाइज टू पे अटेंशन, लाइक पे a lot of attention on this because this is from economics, है ना। bond yield अगर मैं भी समझाऊंगा that is a very important topic, है ना।
ओके 623 बीपीएस का मतलब होता है 0.3%. ओके 0.3%, यानी इट वाज 6.28% was 0.23% हायर देन द प्रीवियस क्वार्टर. ठीक है. नाउ व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, है ना, एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट बॉन्ड यील्ड? ओके, विल बी एक्सप्लेनिंग द बॉन्ड यील्ड इन डिटेल. ओके अभी मैंने कहा कि बॉन्ड यील्ड जो है हाँ, बॉन्ड यील्ड वाज 6.28%. ठीक है. इट वाज हायर बाय 23 बेसिस पॉइंट्स. ठीक है. काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट इज बॉन्ड यील्ड. ठीक है. एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन दिस, है ना. बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड एंड यील्ड. यील्ड का मतलब होता है हाउ मच आई एम गेटिंग ऑन माई बॉन्ड. ठीक है. या हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग ऑन, या हाउ मच इज माई बॉन्ड वर्थ ऑफ, लाइक द ट्रू वर्थ ऑफ द बॉन्ड. ठीक है. व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डेट, है ना. अगर मान लो ये एक बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड है, इस पे ये 100 रुपीज का बॉन्ड है. ठीक है. और 7% इसका पर एनम इंटरेस्ट है. क्या है? 7% पर एनम इंटरेस्ट है. दैट मीन्स 100 रुपीज का 7% कितना होता है? ₹7. फाइन. 100% का 7 रुपीज 7. दिस विल बी फिक्स्ड. ठीक है. ये है कूपन रेट. व्हाट इज दिस कॉल्ड? कूपन रेट. ठीक है. दिस इज द अमाउंट ऑफ, दिस इज द इंटरेस्ट दैट दिस बॉन्ड ऑफर्स. ठीक है. इफ आई एम अ कॉमन मैन. ठीक है. मैंने किसी कंपनी का या किसी स्टेट का बॉन्ड खरीद लिया है, ये आई एम होल्डिंग दिस बॉन्ड. ठीक है. तो मेरे पास सॉरी आई एम सॉरी. तो मैंने क्या किया? मैंने 100 रुपीज पे किए. ठीक है. और मुझे लाइक इसका टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है 5 ईयर्स. ठीक है. तो मैंने 100 रुपीज पे किए और मुझे हर साल के एंड में 7 रुपीज मिलेंगे. ठीक है. और 5 साल बाद मुझे कितना मिल जाएगा? 100 रुपीज मेरा बैक मिल जाएगा. मैं जब इसको बेच दूंगा वापस गवर्नमेंट को, या कंपनी जिससे मैंने खरीदा उसको वापस दे दूंगा, एंड आई विल गेट माय प्रिंसिपल अमाउंट बैक. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल. दिस इज कॉल्ड कूपन रेट. ठीक है. इट इज, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ टाइम मुझे हर साल 7 रुपये मिले हैं. ठीक है. एज ए इंटरेस्ट या कूपन रेट, एंड 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू भी मिल गया. मेरा कितना अर्निंग हो गया? 135 रुपीज. ठीक है. मैंने 100 रुपीज दिए थे, लाइक 135 अर्न कर लिए. बेसिकली 35 रुपीज अर्न किए मैंने. ठीक है. ओके. मैंने कितने अर्न किए? लाइक 35 रुपीज मैंने अर्न कर लिए. लेकिन हाउ इज बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना. Okay, how is bond different from other financial instruments? Like bond can be traded, freely traded in market as well. Bonds are freely traded. ठीक है. Bonds are traded. ठीक है. तो कोई भी चीज जो ट्रेड होती है उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई डिमांड पे. ठीक है. अगर बॉन्ड्स, कोई गवर्नमेंट है बहुत सारे बॉन्ड्स सेल कर रहा है. ठीक है. लाइक इफ यूपी गवर्नमेंट इज सेलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड सेल करके क्या कर रहा है यूपी गवर्नमेंट? बेसिकली दे आर रेजिंग लोन. ठीक है. हाउ? अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीज वर्थ के, मतलब 100 रुपीज 100 के 1 लाख बॉन्ड छाप दिए. ठीक है. और मार्केट में कहा कि ये बॉन्ड्स खरीद लो, हम आपको 7 रुपए हर मंथ देते रहेंगे और 5 साल बाद हम आपको 100 रुपए भी दे देंगे. सारी पब्लिक ने क्या किया? ये बॉन्ड खरीद लिए. यूपी गवर्नमेंट को मिल गए 100 करोड़ रुपीस. ठीक है. 100 करोड़ रुपीस. ठीक है. और वो अब क्या करेगी? हर साल इसका 7 करोड़ रुपीस एज अ इंटरेस्ट पेमेंट देगी पब्लिक को या बॉन्ड होल्डर को. इज दिस क्लियर?
ओके 100 करोड़ रुपीज रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे पेपर पे बॉन्ड छाप दिया और कहा कि 7% इंटरेस्ट रेट पे आप ये बॉन्ड खरीद लो, हम 7 साल बाद आपको प्रिंसिपल भी रिटर्न कर देंगे और आपको हर साल हर बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोन लेके, व्हाट इज लाइक व्हाई इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू रेज अ लोन, सो दैट दे कैन स्प्रेड देयर व्हाट लायबिलिटीज ऑन टाइम, ठीक है, कि अगर इनको अभी कोई काम करना है और ये अपनी लायबिलिटीज को टाइम में स्ट्रेच कर देंगे तो पर अमाउंट ऑफ टाइम उनके लायबिलिटीज विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। दैट इज द बेसिक अमाउंट, द बेसिक फिनोमेना बिहाइंड द लोन, ठीक है। ओके अगर बहुत सारा, अब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा इस बॉन्ड की है, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा सप्लाई होने की वजह से इसका क्या होगा, सप्लाई का एक्सेस हो जाएगा और इसकी सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होने पे क्या हो जाएगा, इसका प्राइस फॉल होने लगेगा, ठीक है। जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड तो प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो जो बॉन्ड 100 रुपीज का था, है ना, जो रुपीज 100 का बॉन्ड था, है ना, अब हो सकता है वो 80 रुपीज पे बिकना या 90 रुपीज पे बिकना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू, वो बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा, पेपर चेंज नहीं होगा, है ना, लेकिन आई एम होल्डिंग दिस बॉन्ड और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया है ना, तो अब इसकी वैल्यू है नहीं, है ना, तो कोई परचेज नहीं कर रहा है इसे, क्योंकि बहुत, मतलब एवरीवन इज हैविंग दिस बॉन्ड नाउ, है ना, एंड द मार्केट इज फ्लडेड विद दिस बॉन्ड। उस केस में इसका प्राइस फॉल हो जाएगा, उस केस में, लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7% इज फिक्स्ड ऑन ₹100, जो रिटर्न होगा वो उसको 7 रुपीज मिलेगा, उसको रिटर्न कितना मिलेगा, ₹7, 7 इज द 7% ऑफ ₹100। अब इसको रिटर्न कितना मिल रहा होगा, 7, ठीक है। तो 97 ₹90 का हायर परसेंट होगा या लोअर परसेंट होगा, ऑब्वियसली हायर परसेंट है एज कंपेयर टू 100, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, मान लो 7.3% हो गया, कैसे, 7/90 इंटू 100 अगर करें, है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पहले जो 7% था बॉन्ड का रिटर्न वैल्यू या कूपन रेट तो 7% था, अब 7.3 हो गया, क्यों, क्योंकि ये 7 रुपीज तो फिक्स मिलेगा बट इसका प्राइस फॉल हो गया, ठीक है। अगर ये फिर इसने भी किसी को बेच दिया 80 रुपीज पे, ठीक है, और 7 रुपीज इसको मिल रहा है, ठीक है, और इसने भी बेच दिया लाइक 70 रुपीज पे और 7 मिल रहा है, तो यहां पे तो इसको 10% मिल रहा है ना, और यहां पे 7% ही मिल रहा था फर्स्ट पर्सन को। इफ दिस चेन स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज, है ना, दैट मीन्स कि द मार्केट हैज बीन फ्लडेड विद डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किसी इकोनॉमी का स्टेटस एनालाइज करने के लिए बेसिक जो टर्म्स यूज होती हैं, लाइक इन्फ्लेशन हो गया, है ना, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया। एक ये भी मेथड है किसी इकोनॉमी की फिस्कल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए, फाइन, कैसे, अगर ये बॉन्ड यील्ड बढ़ती जाए, बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, 7 से 8% हो गया, 9% हो गया, 10% हो गया, ठीक है, बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है का मतलब द मार्केट हैज बीन फ्लडेड विद द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ओके। ये दूसरी वजह से भी हो सकता है, कैसे, अगर कोई कंपनी है जिस कंपनी ने ये बॉन्ड फ्लोट किया है, ठीक है, सॉरी, जिस कंपनी ने ये बॉन्ड फ्लोट किया है मार्केट में, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस पुअर हो जाए, ठीक है, लाइक कंपनी एबीसी है ना, एबीसी कंपनी है, इसने बॉन्ड पब्लिश किया था ₹100 का 5% इंटरेस्ट के साथ, है ना, ठीक है। इन केस ये कंपनी का रिस्क हाई है, ठीक है, इन केस इस कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है, तो जो बॉन्ड होल्डर होगा वो क्या करेगा, he will try to sell his bond as soon as he can, right? तो what will he do? He will like, चलो यार 100 रुपए नहीं 80 रुपीज में ही खरीद ले मेरा कोई बॉन्ड, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन उस 80 रुपीज पे भी वो कंपनी उसको 5% पे कर रही होगी, मतलब ₹5 पे कर रही होगी, है ना, तो स्टिल इस बॉन्ड का 80 फिर 5, ठीक है, ठीक है। तो मतलब उसके बाद मान लो वो भी बेच देता है 70 और ₹5, ठीक है, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ठीक है। ये 5% जो है वो फेस, दिस 5% इज मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड, वो फेस वैल्यू पे होता है,
फाइन, और वो हमेशा उतना फिक्स रहेगा, अंडरस्टूड। तो अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल या फिजिकल हेल्थ पुअर है तो इसके बॉन्ड्स को लोग होल्ड करने के बजाय दे विल ट्राई टू सेल इट ऑफ, है ना, कि मैं आई शुड गेट इट ऑफ द बॉन्ड बिकॉज द बॉन्ड डज नॉट हैज अ वेरी साउंड फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। इन दैट केस क्या करेंगे, इस कंपनी का बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड यील्ड यही होता है, ये जो है बॉन्ड यील्ड है, या ये बॉन्ड यील्ड है 5/80 या 5/70, यही बॉन्ड यील्ड है। अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी इज अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बॉन्ड यील्ड 6.28% था, दैट वाज 23 बेसिस पॉइंट्स हायर देन व्हाट द प्रीवियस वन, द प्रीवियस क्वार्टर, यानी प्रीवियस क्वार्टर से 23 बेसिस पॉइंट्स बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, या 0.23% इंक्रीज हो गई थी। दैट ऑलरेडी शोज दैट द कंडीशन ऑफ स्टेट्स फाइनेंशियल हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग एट अ फास्टर रेट, and that is why the government should intervene. Understood? Understood this concept of bond yield and like this the how bond yield can act as an indicator of financial health of the country या किसी corporation का भी. Okay, fine. So we took a detour from this polity thing and we also got into economy, है ना, and that was important one. Bond yield is a very important topic. Like it has already come into prelims, है ना, and it is expected because RBI has been working very hard to control this bond yield thing, and the states government have been advised by union government to like get into touch with RBI and to deal with this situation. Okay, so center has been exercised. Okay, I told this all. Fine. Now we are on our topic of labor codes, ठीक है। Recent में in the very starting of the lecture I told you कि why labor codes are why is the government formulating all these labor codes. Labor law is under the 7th schedule of the like concurrent list of the 7th schedule. Concurrent list में क्या है, both the state and union have the power of legislation, ठीक है, लेकिन obviously union has an overriding power, ठीक है, unless a bill that अगर concurrent list पे कोई bill है उस पे state ने law बनाया है, union can override it, ठीक है, unless that bill has been reserved by president and president has assented to it, okay। यानी अगर state के किसी bill को concurrent list में अगर कोई law बनाता है, कोई state law बनाता है concurrent list के किसी issue पे और उस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया है तो यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरराइड दैट बिल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन द डोमेन ऑफ पॉलिटी, ठीक है। तो वाई न्यूज़ पार्लियामेंट हैज पास्ड द 3 लेबर कोड बिल्स, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। विल बी डीलिंग विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डील करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। दीज 3 codes are very important both from prelims point of view, mains point of view से तो हैं ही, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं। ILO की 2018 की रिपोर्ट कहती है द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में द नेचर ऑफ वर्क इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली, है ना। तो एक तो नए काइंड ऑफ वर्क जनरेट हो रहे हैं जैसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो लोग हैं लाइक Uber drivers are platform workers, ठीक है, they can be classified as gig workers as well. We'll be explaining that later how the conflict has been created, है ना। गिग वर्कर्स वो होते हैं जैसे फैशन इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, वो गिग वर्कर्स हैं, है ना। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं इन द रिटर्न ऑफ अ स्पेसिफाइड पेमेंट, ठीक है। वाई न्यूज़, बिकॉज देर आर 40 central government laws and 100 state government laws in total, क्योंकि states legislate कर सकते हैं labor laws पे, तो all states have made some laws, है ना। तो हर state का अपना law है and central government के कुछ laws हैं, है ना, क्योंकि central government भी legislate कर सकता है। तो total 144 laws total labor laws के अंडर में है, ठीक है। and that creates a very complex system that is hard to monitor, है ना, and like hard to implement, है ना। To rationalize all these codes, है ना,
to rationalize all these laws and to accommodate them into codes, है ना, like occupational safety hazard. अब occupational safety hazard condition जितनी states के laws हैं और center के laws हैं उनको consolidate करके एक code बना दिया, ये code, ठीक है. Similarly, industrial relations code and code on social security. Occupational safety hazard मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का सेफ्टी और मतलब occupational hazard जैसे सिलिकोसिस एक बीमारी है, उन लोगों को होती है जो माइंस में काम करते हैं, ठीक है, सिलिका माइनिंग या ऐसी जगहों पे काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस होती है. दैट इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब अ बीमारी, लाइक अ हैजार्ड दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, ठीक है. तो सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस कोड, अब ये सारे लॉज को इसमें डाल दिया, ठीक है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन को जो डिटरमाइन करता है या स्पेसिफाई करता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है. और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, लाइक प्रोविडेंट फंड है ना, ग्रेजुएटी पेमेंट, ये किसी वर्कर का जो वेलफेयर है ना, ईपीएफओ या ईएसआईसी है ना, ईएसआईसी बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें जो है ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी के अंदर में, ठीक है. पेंशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी. इन 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस्ड 4 बिल्स, ठीक है. फर्स्ट वन इज वेजेस वाला बिल पास हो गया है बोथ राज्यसभा और लोकसभा, एंड इट हैज गॉट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड वर रेफर टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है. मतलब सॉरी, इट वाज रेफर टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द लेबर लॉज, ठीक है. स्टैंडिंग कमिटीज कौन सी होती हैं? इट्स इंपॉर्टेंट, कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड ऑलवेज, लाइक जहां भी आप कमिटी लाइक स्टैंडिंग कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, एडहॉक कमेटी, इन चीज़ों से जहाँ भी आपका इनकाउंटर होता है तो डेफिनेटली रेफर टू द बुक, ठीक है. यू शुड रेफर टू द बुक फॉर द स्टैंडिंग कमेटी. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. स्टैंडिंग कमिटीज आर लाइक परमानेंट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, परमानेंट कमिटीज, ठीक है. जैसे ठीक है, एक तो होता है कैबिनेट कमेटी. कैबिनेट कमेटी एग्जीक्यूटिव की कमिटीज हैं, ठीक है. और एक होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज. पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट भी है, ऑपोजिशन भी है, ठीक है. तो क्या, लाइक गवर्नमेंट भी है, ऑपोजिशन भी है, एंड दिस होल थिंग इज पार्लियामेंट, ठीक है. बट जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव है. इंडिया का सिस्टम क्या है? एग्जीक्यूटिव इनसाइड पार्लियामेंट, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल. फाइन. तो जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं वो कमिटीज हेल्प करती हैं एग्जीक्यूटिव को, ठीक है. और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड दे डेलिबरेट अपॉन इश्यूज, ठीक है, एंड दैट इज हाउ दे फॉर्म पॉलिसी. पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन सी होती हैं? पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं स्टैंडिंग कमिटी एंड एडहॉक कमिटी. पार्लियामेंट एज अ होल इज अ बॉडी, ठीक है, बॉडी पॉलिटिक बेसिकली. द पार्लियामेंट एज अ होल हैज इट्स ओन कमिटीज जो कि पूरा पार्लियामेंट की वर्किंग को ओवरसी करते हैं या एग्जीक्यूटिव के वर्किंग को ओवरसी करते हैं. एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर प्रीलिम्स में, आई बिलीव, कि हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव, है ना. तो बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से कमिटीज भी था. ये कमिटीज जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, दे आर बेसिकली द टूल्स ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर ओवर, एक्सरसाइजिंग चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. क्योंकि एग्जीक्यूटिव की सारी वर्किंग को स्क्रूटिनाइज करती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है. तो ये वाला वेजेस वाला बिल जो है वो पास हो गया, एंड इट गॉट द प्रेसिडेंशियल असेंट एज वेल. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस वाले इन तीनों बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था. स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है. एडहॉक कमिटीज, स्पेशल कमिटीज फॉर्म की जाती हैं किसी स्पेशल इशू को डील करने के लिए, एंड आफ्टर द इशू हैज बीन डेल्ट विथ दीज कमिटीज गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है. लेकिन स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी इज अ परमानेंट वन, ठीक है, ऑन लेबर. इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो सारी पार्टीज हैं उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना. कि जैसे ऑब्वियसली कि जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उसके ज़्यादा मेंबर यहाँ भी होंगे, है ना. बट ऑलमोस्ट लाइक ऑल पार्टीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन दिस स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है. तो अब इन बिल्स को हम देख लेते हैं, ठीक है. अब ये स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस को कंसीडर कर लिया है ना. और उसके बाद ये वाला बिल आ गया है, तो विल बी डीलिंग विद दिस, ठीक है. सॉरी,
ठीक है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2022। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैंने बताया, ट्रेड यूनियन, वर्कर, मैनेजमेंट, इनके जो रिलेशंस से चीज़ें डील करती हैं वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सॉरी। इट कंसोलिडेट्स 3 erstwhile लॉज, कौन से? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ठीक है। इन तीनों लॉज को ये सेंटर के लॉज हैं, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है इट्स सेंट्रल लॉ, तो इट ट्राइज टू कंसोलिडेट दीज 3 लॉज, फाइन। इन तीनों लॉज को कंसोलिडेट करके और इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्कर, ठीक है, इट डिफाइंस अ वर्कर एज एनी पर्सन हु इज हायर्ड फॉर अ रिवॉर्ड, ठीक है, हु वर्क्स फॉर अ रिवॉर्ड या इट रिवॉर्ड या अवार्ड, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स persons employed in managerial capacity, fine. It works for like 18,000, ठीक है। Okay, in a supervisory capacity with wages exceeding, it excludes person employed in managerial or administrative capacity or in a supervisory capacity with wages exceeding rupees 18,000. If a labor is having higher wages than 18,000, then they will be included. But if he has a supervisory role or a managerial role or an administrative role, then he will not be included into this code. Fine. Standing orders का मतलब है कि इस बिल में स्टैंडिंग ऑर्डर्स के रिलेशन में ये क्लॉज है कि ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स विद 300 वर्कर्स और मोर मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू, अर्लियर इट वाज नॉट 300, इट वाज 100 वर्कर्स, ठीक है, अर्लियर इट वाज 100 वर्कर्स, नाउ इट इज 300 वर्कर्स, ठीक है। तो ये अच्छा है या बुरा है आप सोच के मुझे कमेंट में बता दोगे। ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स विद 300 वर्कर्स और मोर मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स on the matters relating to classification of workers, manner of performing work hours और wages, तमाम चीज़ों के बारे में, और wage rates, ये इन्फॉर्म कैसे करोगे आप अपने वर्कर को? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीवांस रीएड्रेसल, ठीक है। तो हर कंपनी को, हर इस्टेब्लिशमेंट को जहाँ पे 300 से ज़्यादा वर्कर हैं उनको ये चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है, दे विल हैव टू स्पेसिफाई दीज थिंग्स, है ना, कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर कैसे कर रहे हैं, वो कैसे वेज रेट और हॉलीडेज और ये वर्कर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैसे गवर्न कर रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीवांस रीएड्रेसल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि इस बार जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स का क्लॉज है ना, दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव क्लॉज कि द एस्टैब्लिशमेंट्स कैन मेक स्टैंडिंग ऑर्डर्स other also, like they can make standing orders on issues other than the prescribed ones, ठीक है। ये तो prescribed है, इस पे तो necessary है, must है, ठीक है। लेकिन आप जो कंपनीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो बाकी इश्यूज पे भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, फाइन। तो अब ये भी अच्छा है कि बुरा है, यू विल प्लीज बी टेलिंग मी इन द कमेंट। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट हैविंग एटलीस्ट 300 वर्कर्स टू सीक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ठीक है। क्लोजर, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट से, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ क्या होता है? कोविड के केस में सारी कंपनीज क्लोज हो गई, दे बिकेम फाइनेंशियली अनवायबल, ठीक है। तो what did they do? They started laying off their workers, ठीक है। Many companies are facing closure as well, है ना। MSME have been severely affected by this, ठीक है। तो what is एक okay, हाँ, lay off, retrenchment and closure, ठीक है। retrenchment का मतलब होता है जब मास लेवल पे एम्प्लॉयज को कंपनी निकालती है टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ की कंडीशन तब आती है बेसिकली जब इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल वायबिलिटी जो कंपनी की वो पुअर हो जाती है, ठीक है। बट पहले क्या था कि पहले 300 वर्कर्स की बजाय 100 वर्कर्स था, ठीक है। तो यू गाइज विल बी कमेंटिंग एंड टेलिंग मी कि इज इट गुड और बैड कि पहले 100 वर्कर्स वाली एस्टैब्लिशमेंट को, मतलब कम वर्कर वाले एस्टैब्लिशमेंट को भी परमिशन लेनी पड़ती थी, दैट लिमिट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड, ठीक है, 300 वर्कर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered only to allow an increase in the threshold through notification. Now what is this?
सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered only to allow an increase in the threshold through notification, ठीक है. Negotiating union and negotiative council, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज इनवाइटेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम वर्कर्स यूनियन, फ्रॉम ट्रेड यूनियंस एंड ऑल, ठीक है. निगोशिएटिंग यूनियन, दो प्रकार की चीजें इसमें डिफाइंड है, एक निगोशिएटिंग यूनियन है, एक निगोशिएटिव काउंसिल है, ठीक है. तो निगोशिएटिंग यूनियन है, जो मैनेजमेंट है ना, वो इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन से डील नहीं करेगा अब, है ना. व्हाट विल दे डू, दे विल कॉल अपॉन अ निगोशिएटिंग यूनियन, ठीक है. निगोशिएटिंग यूनियन, ठीक है. निगोशिएटिंग यूनियन वो यूनियन होगी जिसके पास 51% ऑफ जो लेबर है उसका मेंबरशिप है. जैसे मान लो AITUC है ना, AITUC के पास मान लो 51% किसी कंपनी में 51% मेंबर्स AITUC के साथ रजिस्टर्ड है, तो ये AITUC विल बिकम द नेगोशिएटिंग यूनियन इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट, ठीक है. अब व्हाट इफ किसी कंपनी के पास 51% मेंबरशिप नहीं है, सारी कंपनी के पास, किसी के पास 20% है, किसी के पास 30% है ना, उसमें निगोशिएटिंग यूनियन की बजाय निगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी. निगोशिएटिंग काउंसिल में क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सॉरी, कहाँ के, उन यूनियंस के जिसके पास 20% मेंबरशिप हो, ठीक है. ओके, अगर मतलब यानी लेस देन 20% अगर यूनियन की किसी की मेंबरशिप है तो दैट यूनियन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस, फॉर द मेंबरशिप ऑफ दिस नेगोशिएटिंग काउंसिल, ठीक है. और फिर ये नेगोशिएटिंग काउंसिल विल बी नेगोशिएटिंग विद द मैनेजमेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लाइक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, क्योंकि ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि that is going to have a lot of impact, है ना, and it has also invited a lot of criticism from all the quarters of industry, है ना, except for the corporate, obviously, except for the, why will corporate criticize this, है ना. Settlement of dispute, okay. Each industrial tribunal, okay. अब industrial tribunals का constitution किया जाएगा, है ना. Industrial tribunals will consist of a judicial member and an एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ठीक है. जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों होंगे, ठीक है. द कोर्ट क्लासिफाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है. अब कौन से डिस्प्यूट जो हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है. वो इस कोड में है, ठीक है. डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और otherwise termination of the service of an individual worker is considered to be an industrial dispute. Industrial dispute, like कौन से dispute जो होंगे वो industrial dispute माने जाएंगे, that will qualify to be tried in an industrial dispute. That will be which one? Discharge, dismissal, retrenchment और otherwise termination of services, ठीक है. ये भी important है. The case of disputes relating to termination of individual worker, the worker may apply for the industrial tribunal for 45 days का time limit है. जहाँ भी टाइम लिमिट जुडिशियल प्रोसेस में है ना, या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लिमिट जहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, इट इज अ गुड थिंग दैट रिस्टोर्स द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड मेक्स इट मोर रिलायबल, ठीक है. ओके, सेटलमेंट ऑफ, अब ये एक न्यू टर्म इंक्लूड की गई है. दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, द होल एक्ट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन द सेंस कि इट हैज इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम लाइक ट्रेड यूनियंस एंड ऑल दीज पीपल, ठीक है. Now the government is like contract workers को ही like they are trying to rephrase the term and like present it in a more acceptable manner, है ना. That is fixed term employment, ठीक है. ये नई टर्म पहले के लॉज में नहीं थी. This has been included in this code, ठीक है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट refers to workers employed for a fixed duration on a contract signed between the worker and the employer. एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, और उस बेसिस पे, अब इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट. आई विल टेल यू हाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है. बट फॉर द टाइम बीइंग bear with me with the fixed term employment. This is actually has been added as a term in this whole, ठीक है, code, fixed term employment. Provided that his hours are work. अब यहाँ पे fixed term employment contract worker से कैसे different है? We are going to deal with this. His hours of work, wages, allowances and other benefits shall not be less. Very important, very important.
देन दैट ऑफ परमानेंट वर्कमैन, ठीक है। जो परमानेंट वर्कर है उसका जो वेजेस है ना, अलाउंसेस है और जो बेनिफिट्स हैं, है ना, अगर 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 किसी पर्सन को कोई कंपनी एज अ एफटीई हायर कर रहा है तो दे विल हैव टू प्रोवाइड हिम एचआरए, है ना, दे विल हैव टू प्रोवाइड हिम विद अलाउंसेस, टीएडीए एंड ऑल दिस एंड वेजेस एंड द हॉलीडेज ऑल्सो, है ना। ये सारी चीज़ें जो परमानेंट वर्कर की हैं दैट विल बी एप्लीकेबल टू द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, बट दिस इज नॉट द केस विद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस. Are you getting to understand what the difference is between fixed term employment and contract employment? Good. He shall be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman. Okay, statutory benefits means EPFO, gratuity, है ना, ये सारे benefits उसको भी मिलेंगे. But this is statutory benefits को जो contract employees होते हैं उनको उनके statutory benefits बहुत कम होते हैं या almost नहीं होते हैं as compared to the permanent workman, ठीक है. But fixed term employment में क्या है कि एक permanent worker को ही उठा के, sorry, okay, I think there's a technical issue over here. Okay, it's important to like deal with things कि from prelims point of view, है ना. It's important to look at the things from mains point of view. And when in case of prelims, है ना, if you analyze the last few year papers, it becomes very important जो changes होते हैं. जैसे defense acquisition procedure में जो change हुआ है as compared to 2016 defense acquisition procedure, that is important. Okay, there is a minor technical issue. Please hold on for a second. Okay, we are back. Okay, he shall be eligible for all statutory benefits available to a permanent worker proportionately according to the period of service. This is important, है ना, proportionately according to the period of service, ठीक है. कि मतलब जो उसकी मतलब जो permanent worker का gratuity है that will be for like 30 to 35 years, है ना. Similarly, if a company is hiring a fixed term employee
तो if they are hiring for 2 years, तो उसी proportion में that all the gratuity and all the funds will be given to that FTE. ठीक है. Another clause is reskilling fund. If retrenchment occurs, है ना, तो if a person is fired, तो उसको reskilling के लिए fund जो उसका previous employer है, that employer will contribute to the fund, जो fund establish करेगी government, reskilling fund, ठीक है, to reskill those workers who are fired from their jobs. ठीक है, तो ये normal है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, very important. What are the concerns? तो जितना हमने आर्टिकल, जितना एक्ट से डील किया उतना ही लगभग कंसर्न से डील करेंगे. क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स. द होल बिल हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड दैट मेक्स दिस इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट द फाउंडेशन ऑफ दिस होल लेबर कोड इज टू मेक द इंडियन मार्केट, है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लेबर, है ना, दैट माइट इंसेंटिवाइज द कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक है, क्योंकि लेबर लॉज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, मिरियाड हैं और इट्स अ वेरी entangled web. तो to simplify this, लेकिन this should not be done at the cost of the welfare of the like labor, because they already earn very like they earn pennies, in the sense कि the top executives are earning a lot, है ना. तो what are the concerns? We'll be dealing with them. Okay, we were talking about the industrial tribunal, है ना. तो government, very important thing here, कि the government can defer the enforcement of the award of the tribunal. ठीक है, the government can defer the award of the tribunal. This is a very like important thing, कि the executive can overrule a quasi judicial या judicial body, है ना. तो this is a conflicting situation over here. ठीक है, on the public ground affecting national economy and social justice. This was basically done to accommodate this pandemic thing, है ना. But I don't think it is a long term viable thing to do, है ना, कि it will be very vague on the grounds कि national economy, है ना, governments can push this at any time. National economy is a very vague term, or social justice is even a vague term, है ना. तो in the sense it's not a very vague term, in the sense कि the government can use these terms with very wider definitions to implement, to like defer the award of a tribunal. ठीक है, तो उसके बाद like the labor will be left with no options. Industrial Dispute Act, Madras High Court actually struck down a similar order previously, ठीक है, on the constitutional grounds. ठीक है, मतलब it's every person has a right of justice, है ना. If the judiciary has passed an order, the executive should not turn it down on like vague grounds. The thing is that at least executive should not turn it down. If anyone can, that should be legislature. Okay, fine. That is the fine balance of executive, judiciary and legislature. The employers now need permission of government layoff. Earlier it was, as I told you earlier, it was for retrenchment, है ना. अगर 300 employees से ज़्यादा है, कम है आपके establishment में, तो you don't have to seek permission from government. Earlier it was 100. अगर 100 employees भी हैं and you are retrenching them, you are laying them off, so you'll have to seek permission from government. Now the limit has been increased from 100 to 300. Fine. So yes, it obviously is a concern. The employers is now permitted to issue standing orders, as I told you in the very beginning, कि the employer can now issue standing orders on the issues prescribed in the act, and apart from this, on the other issues as well. This gives the employer a huge amount of power, है ना, कि to like they can make any standing order that suits them. ठीक है. Section 25H of Industrial Disputes Act requires, okay, Industrial Disputes Act, that the act which has been consolidated into this one, it required the employer to first give an opportunity. Okay, whenever an employee was retrenched, okay, so section 25H of this act required, it mandated that if a company has retrenched its employee, and if the company is hiring within 1 year, okay, so and if the company is again hiring, like
रिलायंस है एक कंपनी और उसने अपने 100 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है रिट्रेंचमेंट के नाम पे, ठीक है, और वो फिर कंपनी दोबारा हायर कर रही है, तो पहली अपॉर्चुनिटी जो है उन एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए जो रिट्रेंच हो गए हैं। इट वॉज 25 सेक्शन 25H ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। बट अभी क्या हो गया है, अभी ये हो गया है कि अगर ये सेम क्लॉज एप्लीकेबल है अगर वो कंपनी विद इन 1 ईयर हायर कर रही है, ओके, इफ दे आर हायरिंग आफ्टर ईयर, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु आर अर्लियर एम्प्लॉयड विद द कंपनी। तो कंपनीज क्या कर सकती हैं, दे कैन इजिली फायर, है ना, a good amount of people and then after 1 year they will hire another ones, ठीक है, because the same people will have a different negotiating power as compared to the newer ones, ठीक है। तो this is like it will act to the disadvantage of laborers, ठीक है। An important right in the 19 is section 9 है, okay, this prior notice वाला है ना, requires the employer to give 21 days prior notice of any proposed change in service condition, ठीक है, कि if you are an employee and your employer tells you that कि इस ईयर में holidays has been reduced, for that ये करने के लिए your employee will have to give you a 21 days prior notice. But now this clause has been reproduced, but a special addition has been done in accordance with the orders of the appropriate government. Like Air India में अभी retrenchment चल रहा था, ठीक है, और एयर इंडिया में कोविड के टाइम ये हो गया कि 50% ऑफ जो सैलरी थी दैट वाज स्लैश्ड टू 50%, ठीक है, लाइक जो एग्जिस्टिंग सैलरीज थी उनको चेंज कर दिया गया 50% पे, ठीक है। पीपल लाइक चैलेंज इट, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये क्लॉज ऐड करने के बाद क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूड गाइडलाइंस, ठीक है, कि the salaries of employees of Air India need to be reduced by 50%. अब ये लॉ में इंक्लूड कर दिया कि अगर मिनिस्ट्री या रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 21 डेज का नोटिस भी खत्म कर सकते हो, ओके, यानी दिस क्लॉज हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड विद एडिशन ऑफ दिस, ठीक है, इट्स लाइक bypassing the due procedure kind of, okay। और क्या, अब देख लेते हैं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या कंसर्न्स है। द एम्प्लॉयर हैज द राइट टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विच में प्रेजुडिस, ओके, नाउ द एम्प्लॉयर इज हैविंग द राइट ऑफ रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में क्या होता है कि एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी के बीच में नेगोशिएशंस होती हैं एंड उसके बेसिस पे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन नाउ द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एम्प्लॉयर हैज द राइट टू रिन्यू। अगर एम्प्लॉयर के पास राइट है कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता हूँ या FTE रिन्यू कर सकता हूँ, बेसिकली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रिन्यू कर सकता हूँ, तो कंपनी विल, जो एम्प्लॉय होगा, ही विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टॉक इल ऑफ द कंपनी, है ना, he will not be in a position to take stand of the company, he will become a compliant worker, fine. Since the law does not provide for the upper and lower limits of the term of employment, the employment, this is a very like important clause कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में पहले क्या था कि लाइक नेशनल लेबर कमीशन जो है उसका रिकमेंडेशन है कि 2 ईयर से ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल वर्क में लोगों को नहीं रख सकते हो, फाइन। लेकिन अभी क्या हो गया है कि दिस हैज़ बीन डन अवे विद इन FTE। FTE में आपका कॉन्ट्रैक्ट कितनी बार भी रिन्यू हो सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग एज वेल, बिकॉज maybe in after 10 to 15 years there will be no permanent employment, है ना। every worker will be an FTE, fixed term employee, and he will, उसका contract renew होता रहेगा kind of, okay। So it's a dangerous thing actually। there is no limit on number of renewals of the existing contract, ठीक है, in contrast to the Contract Labor Act regulations, ठीक है। Contract labor में clauses थे कि आप सारे वर्क पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्लॉज थे, द वर्क इज ऑफ पेरिनियल नेचर, ठीक है, वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, मतलब इफ द वर्क इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, है ना, या इफ द वर्क इज ऑफ पेरिनियल नेचर, है ना, या द सेम वर्क इज बीइंग कैरिड आउट बाय द रेगुलर पर्सन, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आप 2 साल से ज़्यादा नहीं मतलब हायर कर सकते हो, ठीक है।
बट दिस हैज बीन ऑल्सो डन अवे विद इन FTE, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में इसको डन अवे विद कर दिया गया है, ठीक है. तो दीज आर द कंसर्न्स. ओके, दिस वाज अ स्मॉल स्लाइड ऑफ एक्सप्लेनेशन आई मेड फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेसिकली कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है एंड ही नेगोशिएट्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है. engaged in an establishment through a contractor or agency, ठीक है, not on the payroll of the establishment. okay, जो भी employees contract पे होते हैं they are paid by the contracting agency, not by the establishment. but FTE के केस में ऐसा नहीं है. FTE में जो negotiation होगा या जो contract होगा वो individual employee और company के बीच में होगा, not between a contracting agency and the company, ठीक है, and they will be on the payroll of the establishment, ठीक है. stipulated fixed term, ठीक है, based on the terms negotiated with the contractor. Fine, self explanatory. Employment lapses on completion of term unless renewed, no notice is required to be given for. This is very important, कोई नोटिस की जरूरत भी नहीं है. यहाँ पे आपको जो पहले प्री अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. फाइन, तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पे हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. आई बिलीव दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे. फाइन. Okay, the code replaces 9 laws related to social security, includes EPFO, EPF Act, है ना, Maternity Benefit Act, Unorganized Social Security Act and others, ठीक है, 9. As I told, gig workers refers to outside the traditional employee-employer relationship, ठीक है. If you are working, you are not under the obligation of an employee-employer relationship, ठीक है. If you are not signed the contract, है ना, तो you are a gig worker, ठीक है. What are platform workers? This is very important. Platform workers are those who access organizations or individuals through an online platform, ठीक है. As I told, like Uber, है ना. Uber drivers are what? They are the gig workers or the platform workers, है ना. तो यहाँ पे conflict है. Actually, they are both. How? Uber workers are like, there was a case in United States regarding the same. The Uber workers were demanding that they should be put on the payroll of the Uber company, है ना. But what Uber said is, Uber said that we are a taxi cab aggregator, है ना, we are not the main employer, है ना. तो main employer क्या है? ये self employment है. What Uber's response was कि Uber driver are like self employed, ठीक है, and we are not hiring them, we are not providing them with the cab, okay, we are not providing them with the infrastructure, we are only aggregator of the services, ठीक है. We are aggregating taxis, we are aggregating the demand and we are aggregating the supply and we are trying to match it. That is it. We are only the intermediary, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का इंपॉर्टेंस समझना होगा, ठीक है. तो क्योंकि गिग वर्कर के सोशल सिक्योरिटी रिगार्डिंग कुछ लॉज होंगे, प्लेटफॉर्म वर्कर के सोशल सिक्योरिटी रिगार्डिंग कुछ लॉज होंगे. अब दोनों के लॉज ओवरलैप होंगे तो लाइक ऊबर ओला ड्राइवर्स कहाँ जाएंगे, है ना. मतलब व्हाट आर देयर कंसिडरेशंस दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है. ओके, व्हाट आर द प्रोविजंस ये हैं. एप्लीकेबिलिटी, द कोड इज एप्लीकेबल टू एनी एस्टैब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू साइज थ्रेशोल्ड एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. साइज थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट विल नोटिफाई विद इन इट्स गजेट, ठीक है. Social security fund, the code states that central government will set up fund, ठीक है, and state governments can also set up fund for unorganized worker, gig workers and platform workers, ठीक है. Both central and state governments can set up funds. Fine. उसके बाद क्या है? Provision for registration of all 3 categories of worker, unorganized workers, gig workers and platform worker. यानी unorganized sector के workers को identify करके, है ना, उनको रजिस्टर करने का प्रोसेस यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है. फाइन. तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज बेसिकली ट्राइंग टू व्हाट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी है ना. बट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट नेचर, है ना, ऑफ बीइंग डिफरेंशिएटेड, है ना, ऑफ नॉट बीइंग कंसोलिडेटेड, है ना, ऑफ हैविंग poor working conditions, they lack this social security benefits, ठीक है.
ओके, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर द पर्पसेस, है ना, जो अभी हमने अभी बात की, उन पर्पसेस को और वेलफेयर ऑफ वर्कर को मेंटेन रखने के लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, ठीक है, विच विल मॉनिटर एंड रेकमेंड द स्कीम्स, रेकमेंड टू द गवर्नमेंट एंड इट विल मॉनिटर, ठीक है. द बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, क्योंकि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो नेक्स्ट ईयर ही क्वेश्चन था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ठीक है. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस वन यू कैन लाइक नोट इट डाउन. 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एग्रीगेटर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. 5 एग्रीगेटर्स, ठीक है. एग्रीगेटर कौन हो गए, जैसे उबर ओला आर एग्रीगेटर्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है. 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गिग वर्कर्स, ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर्स. अब 5 representatives of Uber, Ola and all these aggregator services and representatives of gig workers, ठीक है, जो ड्राइवर्स Uber Ola में काम कर रहे हैं उनके representatives, ठीक है. Uber Ola का एग्जांपल मैं आई एम टेकिंग इट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, ठीक है, एंड 5 representatives of the state governments as well. स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड तो किया है, बट यहाँ पे मतलब एक प्रॉब्लम है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं है, दैट इज ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर, ठीक है. तो अगेन ट्रैम्पलिंग अपॉन द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. ओके फाइन. चेंजेस इन डेफिनेशंस, ठीक है, ये चेंजेस डेफिनेशन हुए हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स का लेके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हुआ, ठीक है. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इन लोगों को एकोमोडेट किया गया है बेसिकली इस कोड में, ठीक है. जैसे माइग्रेंट वर्कर्स को अब फॉर्मल एक्सेप्टेंस है इस कोड में, है ना. प्लेटफॉर्म वर्कर को एक्सेप्ट किया गया है. ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, फिल्म एंड टेलीविजन और रियलिटी शोज और इन चीज़ों में जो लोग काम करते हैं दे आर ऑल्सो गिग वर्कर्स, ठीक है. तो इनको भी अलग से एक कैटेगरी में डाला गया है टू रिकॉग्नाइज देम, है ना. तो अगर आप लॉ के थ्रू किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो तो उसको इंटेंडेड बेनिफिट पहुंचता ही नहीं है. तो द फर्स्ट थिंग ऑफ अ लॉ शुड बी रिकॉग्निशन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरी, ठीक है. ग्रेट. कंसर्न्स एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस ऑल्सो, लाइक प्रीवियस सेक्शन ऑल्सो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिस्प्यूट वाले में और सोशल सिक्योरिटी में भी कंसर्न्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द एक्ट इटसेल्फ, ठीक है. No universal social security despite the recommendation of National Labour Commission to have a universal social security, this clause has been missed, okay. We can add this clause to make it a better law, ठीक है. Pension and medical insurance continue to be mandatory only for establishments with minimum employees such as 10 or 20, okay. Any wait, ठीक है. एनी एस्टैब्लिशमेंट जिसके पास 20 एम्प्लॉयज से ज़्यादा होते हैं, है ना, EPF एक्ट के अकॉर्डिंग दे हैव टू हैव नेसेसरीली social benefits such as ESIC, although these are not followed because companies like smaller companies, है ना, जहाँ पे 20, 22, 25, 30 वर्कर्स काम करते हैं, उनका रेवेन्यू इतना नहीं होता बहुत ज़्यादा. इवन अगर होता है तो दे आर लाइक नॉट कंप्लाइंग विद द लॉ इन द सेंस कि दे डू नॉट एक्चुअली रजिस्टर पीपल ऑन देयर पेरोल, है ना. जब वो पेरोल पे ही रजिस्टर नहीं करेंगे तो उनको ग्रेजुएटी और EPF बेनिफिट्स और ये बेनिफिट्स सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, ESIC बेनिफिट्स, वो कैसे मिलेंगे, है ना. ऑल्दो दिस इज नॉट फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, है ना, बट स्टिल दिस हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड कि पेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट्स कंटिन्यू टू बी मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ओनली जहाँ पे 10 से 20 वर्कर्स या 10 वर्कर जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, जहाँ 20 वर्कर प्रिस्क्राइब्ड है वो लिमिट है. लेकिन इसको इट शुड हैव बीन डन अवे विद, मतलब इवन इफ वन वर्कर इज एम्प्लॉयड ही शुड बी प्रोवाइडेड विद सोशल सिक्योरिटी. दैट वुड हैव बीन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, बट इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है. सच एज दोज वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में बी कवर्ड. हाँ, तो अब इनके लिए क्या है कि डिस्क्रिशनरी स्कीम्स आएंगी, है ना, लाइक पेंशन स्कीम आएगी, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आएगी, है ना. ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लाएगी. गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू इट कि दे विल ब्रिंग स्कीम्स
but the universalization has not taken place. Okay, understood? Now periodic labor, okay, PLFS, है ना, has indicated that 70% of regular wage salaried employees in non-agricultural sector did not have a written contract, and this is a very important thing, as I told you, कि the things are not being followed, है ना, because people are not non-agricultural, they did not have a written contract, है ना, जहाँ पे written contract ही नहीं है वहाँ पे payroll पे रखना तो बात अलग है, ठीक है, did not have any social security benefit, ठीक है. The concern, the other concern is gig worker platform worker के बीच में overlap हो सकता है ना. तो like as I told with the example of Ola and Uber drivers, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि gig worker और platform worker की definition में difference है, but बहुत ज़्यादा overlap भी है ना. तो कौन सा rule किसके ऊपर applicable होगा, that will be a conflicting situation. Okay, gratuity is payable to employees that serve continuous period of 5 years. Okay, this is important. Gratuity under general laws is payable to the employees who have served at least 5 years or a continuous period, ठीक है. However, this period will not apply, ठीक है, if the contract term of a fixed, है ना, worker, like if the contract term of fixed term worker expires, ठीक है. The bill further states that in case of fixed term employment, the employer will pay gratuity on pro rata basis, ठीक है, मतलब proportion to the fixed term employment period. As we said कि gratuity जो है, gratuity usually payable है 5 period of 5 years, ठीक है. और उसी लॉ में ये भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का तो ग्रेजुएटी नहीं होता, बट FTI है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, तो उसका ग्रेजुएटी प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज डन वो होगा. अगर FTE 2 years के लिए है तो will he be the beneficiary of gratuity, because gratuity is payable for employee who has served for period of 5 years. तो यहाँ पे conflict है ना, तो law में ही conflict है. However, the Industrial Relations Bill, while defining fixed term workers, states that such workers will be eligible. हाँ, मतलब वही conflict कि fixed term employees जो हैं वो तो like it's not necessary कि वो 5 years के लिए employ किए जाएं, है ना, वो 2 years के लिए 3 years के लिए भी employ किए जा सकते हैं. तो will they be like the beneficiaries of gratuity, है ना. तो यहाँ पे दो conflicting situations हैं, है ना, contain different provisions. The two bills contain different provisions on gratuity for fixed term workers. Like industrial disputes bill में कुछ और था और इस बिल में कुछ और है, दोनों बिल में conflicting situation है, ठीक है. The next is 2020 bill mandates, ठीक है. What does it mandate? An employer or worker including in unorganized sector to provide his Aadhaar number, ठीक है, to receive the social security benefits. But as we know कि पुट्टुस्वामी जजमेंट 2016 में राइट ऑफ प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, है ना, उसको वायलेट करता है ये आधार वाला क्लॉज, है ना. बट इट वाज इन पुट्टुस्वामी जजमेंट जिसमें ये भी कहा गया था कि फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ लाइक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक पीडीएस राशन स्कीम, गवर्नमेंट कैन आस्क फॉर आधार, है ना. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है. Medical Council of India has been done away with. Medical Council of India was established in 1934, है ना, by the Statute of 1933, Medical Council of India Act 1933, ठीक है. 2010 में बहुत सीवियर करप्शन केस आया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाद में उसको डिसॉल्व कर दिया और एक बोर्ड बनाया, है ना. It was a temporary kind of board which oversaw the function of medical education in India, ठीक है. लेकिन what are the issues with NCI, ठीक है. The council regulates the medical education, है ना. It prescribes it monitors the quality of medical education that has to be provided in the country. It has the power of regulation of fees as well, है ना. Fees, quality of medical education, है ना. It has like the whole of the medical education in India is was under the control of Medical Council of India, ठीक है. Most of the MCI members were elected, है ना. अब यहाँ पे conflict of interest arise होता है, ठीक है.
ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रंजीत रॉय कमेटी 2014 में इन्होंने रेकमेंड किया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को शुड बी डन अवे विद, एंड नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, जिसका स्ट्रक्चर अलग होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बेसिकली लोग इलेक्ट होके आते थे और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे अपने, ठीक है। तो होता ये था कि जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, normal people are not going to get elected to medical council of India, only the elites of the elites will get elected to it, okay। वो elites कहाँ पे होंगे, like the costliest of the hospitals जो इंडिया में है ना, वहाँ के members होंगे, है ना। तो जो costliest hospitals हैं, जो state का concern है, वो क्या है, to reduce the health costs। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किसके द्वारा रन की जा रही है, लाइक डॉक्टर्स फ्रॉम वेरी कॉस्टली हॉस्पिटल्स, तो उनका इंसेंटिव क्या है, टू कीप द कॉस्ट्स अप, ओके। तो देयर वाज डेफिनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर वाज डेफिनेट केस ऑफ करप्शन, ठीक है। तो रंजीत रॉय कमेटी ने रेकमेंड किया कि यू शुड डू अवे विद दिस होल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, रेदर यू शुड एस्टैब्लिश अ नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि ओवरसी करे पूरी इंडिया में एजुकेशन को, लाइक मेडिकल एजुकेशन को पूरा ओवरसी करे, और उसका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स की बजाय नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए या अपॉइंटेड मेंबर्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग कमेटी 2016 में नोटेड दैट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो रेगुलेटेड द एजुकेशन ऑफ, लाइक मेडिकल एजुकेशन, है ना, and it was also the members were from the fraternity of like doctors as well, doctors, है ना, तो same fraternity is governing themselves, तो there was definite conflict of interest, ठीक है। अब committees of reform कौन कौन सी हैं, रंजीत रॉय कमेटी 2014 as we talked about, they advised कि form NMC as an oversight body, National Medical Council as an oversight body, and have a common entrance exam, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टू ओवरऑल एमसीआई, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि एमसीआई इज द क्लब ऑफ एलीट्स, है ना, एंड द चांसेस ऑफ करप्शन इन एमसीआई आर सो हाई कि मतलब इट इज सिंपली अनसस्टेनेबल, ठीक है। एंड आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट रंजीत रॉय, ही अगेन आस्क्ड, व्हाट ही डिड वाज ही आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट रंजीत रॉय कमिटीज रिकमेंडेशंस, अगेन ही एडवोकेटेड, लाइक दिस कमिटी एडवोकेटेड फॉर नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है। उसके बाद ओवरसाइट कमेटी अंडर जस्टिस लोधा कमेटी एज एन ओवरसाइट कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इन द परसुएंस ऑफ कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, इफ द सुप्रीम कोर्ट बिलीव्स दैट कंप्लीट जस्टिस हैज नॉट बीन डन, है ना, तो दे कैन, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन पास ऑर्डर्स एंड डिक्रीज, ठीक है, like executive। तो in the pursuance of this oversight committee was formed by Justice Lodha। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन सी कमिटीज थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रिफॉर्म वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लाइक 2010 में इट वाज डिसॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, 2013 में इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, 2014 में रंजीत रॉय कमेटी केम, 2016 में ये नीति आयोग, एंड दिस प्रोफेसर राम गोपाल यादव कमिटी एज वेल, है ना। It has seen a long period of time of about 10 years for reform, है ना, so these committees become very important। Composition of NMC will consist of 25 members, ठीक है, 25 members appointed by, as I said, पहले members MCI में क्या होते थे, सारे nominated होते थे, elected होते थे। तो डॉक्टर्स का एक क्लब है, MCI was what? It was a club of elite doctors, है ना, वो ब्रदरहुड चल रहा था वहाँ पे, है ना, कि 5 years आप रह लो, 5 years मैं रह लूँगा, that kind of thing, और बहुत elite doctors got elected to it, that like actually did not serve the purpose of having a medical council of India, ठीक है। अब क्या होगा, they will be appointed by the central government, ठीक है। Earlier it was what, an elite club, now it will be a proper statutory body, ठीक है। A search committee will recommend the names to central government for the post of chairperson, ठीक है। chairperson होगा, must be a medical practitioner, ठीक है। और जितने बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड्स जो हैं, सॉरी,
उनके प्रेसिडेंट्स जो होंगे वो भी कंपोजिशन एनएमसी के मेंबर्स होंगे। सॉरी, डीजीएचएस है ना, डीजीएचएस का जो डायरेक्टर होंगे वो भी एनएमसी के मेंबर होंगे, और डायरेक्टर जनरल फॉर आईसीएमआर वो भी जो है वो एनएमसी के मेंबर होंगे। 5 मेंबर्स होंगे पार्ट टाइम इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड आरएमपीज अमंग देमसेल्फ फ्रॉम स्टेट्स। अब अगेन यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन दिया है, और ये जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेशनल मेडिकल काउंसिल। दिस हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड देयर इज अ हाई चांस कि दिस माइट कम इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, है ना, if not in only in UPSC, in other state exams as well, है ना, this is important. Now what are functions of NMC? Framing policies for regulating medical institutions and medical professionals as well. Medical institutions and medical professionals, ठीक है, तो medical professionals का जो ethical guidelines है वो भी issue करेगा NMC, और medical institutions का भी। तो ये दो अलग अलग कैसे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस मतलब मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, और मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स का जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, कोड ऑफ एथिक्स, दैट विल बी इशूड बाय, दैट विल आल्सो बी इशूड बाय एनएमसी, एंड इट विल आल्सो फ्रेम द पॉलिसीज रिगार्डिंग द गवर्नेंस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, कि मेडिकल कॉलेजेस कितना फीस चार्ज कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मेंटेन करना है, दैट विल बी ऑल बी टेकन अंडर दिस एनएमसी, ठीक है। असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली टू असेस द रिक्वायरमेंट की कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ केयर का डिमांड क्या है, उन चीज़ों को असेस करना, ठीक है। इंश्योरिंग कंप्लायंस बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ऑफ द रेगुलेशंस मेड अंडर द एक्ट, ठीक है। इंश्योरिंग कंप्लायंस, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं, ठीक है, उन वो आर दे कंप्लाइंग विद द एनएमसी एक्ट, है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट, और नॉट, टू इंश्योर दैट। Framing guidelines for determination of fees up to 50% of the seats in private medical institutions. Okay, 50% of जो seats हैं private medical institutions में, उनकी फीस को एटलीस्ट रेगुलेट करना चाहती है गवर्नमेंट, है ना। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2010 और लाइक आफ्टर 2000 बेसिकली, आफ्टर 2010 यू कैन कंसिडर कैपिटेशन फी स्काई रॉकेटेड। कैपिटेशन फी मतलब कैपिटेशन फीस इज चार्ज बाय मेडिकल कॉलेजेस इन द नेम ऑफ कि वी हैव टू establish a huge medical institution and that demands capital, है ना, तो उसके लिए capitation fee and all these things, ठीक है। तो it actually skyrocketed after 2010 under the it was like a huge misgovernance took place, जिसकी वजह से medical education जो है that became very costly, ठीक है। तो अब capitation fees को predictable होना चाहिए, this is what the committee says. This act says कि मतलब capitation fees cannot be charged as you want, there should be proper guidelines, there should be some principles determine the capitation fees, okay. It supervises autonomous boards set up under the act, जैसे undergraduate medical board, postgraduate medical education board, है ना, pharmacy education board, इन सारे boards को ये autonomous boards होंगे और इनको manage करेगा, like it will monitor them, it will be a supervisory institutions for them, ठीक है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंस्पेक्शन, ओके, दिस वाज अ मेजर इशू, ठीक है, कि मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग जो थी इट वाज हाईली करप्ट प्री इन द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम, ठीक है। उस वक्त जो इंस्पेक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स होता था इट वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस गॉट अवे विद पेइंग ह्यूज ब्राइब्स, ठीक है। उसके बाद एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड टू रेगुलेट एंड प्रमोट प्रोफेशनल कंडक्ट, ओके। कंसर्न्स क्या है, अगेन इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो द कंसर्न्स, द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। MCI decision were not binding on the, okay, again on an attack on the federal structure as the states have been crying over, okay. क्या कह रहे हैं कि मेडिकल काउंसिल्स, ठीक है, NMC's ethics board exercises jurisdiction over state medical council on compliance related to ethical issues. Again हर स्टेट का अपना मेडिकल काउंसिल बोर्ड होता है, मतलब मेडिकल बोर्ड होता है, ठीक है, दैट रेगुलेट्स द कंडीशन ऑफ लाइक इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स जो लोग स्टेट बोर्ड्स पे रजिस्टर करते हैं उनका, ठीक है। बट दिस एक्ट अगेन ट्रैम्पल्स अपॉन द फेडरल सॉवरेनिटी, मतलब स्टेट्स की सॉवरेनिटी पे, ठीक है। प्रीवियसली ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स हैड रिप्रेजेंटेशन इन MCI, ठीक है, while in the NMC only few states on rotation basis, ठीक है। प्रीवियसली ऑल स्टेट्स हैड रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब क्या होगा, ऑन रोटेशन बेसिस की 5 स्टेट्स इस बार रहेंगे, 5 स्टेट्स अगली बार रहेंगे, लाइक दैट इट विल रोटेट, ठीक है, मेंबरशिप।
NMC Act enables the central government to remove the chairperson. Okay, this is very important. ठीक है, NMC Act enables the central government to remove the chairperson or any other member of NMC. ठीक है, NMC Act में जो चेयरपर्सन है या कोई भी मेंबर है उसको गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है, बट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं था. कोर्ट ऑर्डर वाज रिक्वायर्ड टू लाइक रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट अपेलेट बॉडी. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मतलब अगेन इज अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. MCI had no power to regulate fees. This is again आर्ग्यूमेंट क्या है इसके अगेंस्ट कि MCI के पास फीस रेगुलेट करने की पावर नहीं थी, बट NMC के पास फीस रेगुलेट करने की पावर है. दैट विल किल द फ्री स्पिरिट, फ्री मार्केट सॉरी, और एंट्री ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक न्यू ऑर्गेनाइजेशंस इनटू द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल एजुकेशन इज नॉट अ चीप थिंग. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस रेगुलेट करेगी तो नए इंस्टीट्यूशंस खोलना मुश्किल होगा. ठीक है, तो पीपल हैव बीन लाइक टेलिंग गवर्नमेंट कि इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल if you are trying to regulate the fees of 50% of seats in private colleges as well, that will be for detrimental to the medical education of India as it will disincentivize the entry of new players into the market. ठीक है, और जब new players into the market नहीं आएंगे तो obviously it will create a monopolistic situation. It will further aggravate the situation of higher cost of medical education in India. ठीक है, okay, that is it. This is it for the day. Thank you. You can post your all comments in the comment section and I'll be taking it in the next lecture. Thank you.